Hello everyone, welcome back to Fluent Fusion Academy. I am Himanshu, your German language trainer, and in this video, in this lesson, we will cover something super interesting and very important topic: articles and numbers, which are the foundation of German grammar. So please stay till the end of the video, and let's start. So the first question is, what are the articles? So articles are the qualifying word which refers a noun. And in German language, we have three types of article. The first is bestimmt article. In English, we say it a definite article. And the second is unbestimmt article, which is indefinite article in English. And the third is Negation article, which means negative article. So bestimmt article. Bestimmt article refers to a specific noun. The in English में हम इसे the से बोलते हैं. Like the father, the boy, the man, the woman, the boy, the car, the books, the book. But in German, we have to say der Mann, das Buch, die Frau, die Bücher. So der को der, das, die से हम जर्मन में रिफर करते हैं. Unbestimmt article, indefinite article, refers to a non-specific noun or singular number, not the plural. Like a or an in English. A और an जो होता है वो an हम उस तभी सुन लेते हैं when we have vowels. And in German it is ein, eine. Okay, in German. So इनका plural क्यों नहीं बन सकता? अभी हमारे पास में एक नाउन है the book, ठीक है, उनको हम the books बोल सकते हैं, बट a book और a books नहीं बोल सकते. बुक्स को हम ए से रिफर नहीं कर सकते. इट इज नॉन लॉजिकल. So this is the logic behind that in unbestimmt article we can't make the sentence and we can't make plural. Okay, and the last one is negation article, which indicates the absence of something. No in English and kein in German. Kein, keine. इसमें plural भी exist कर सकता है. So basically जो जर्मन आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो 4 टाइप्स होते हैं. 4 बेसिक्स पे डिपेंड करते हैं. मस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, प्लुरल. मस्कुलिन जो होता है वो मेल्स के लिए, फेमिनिन होता है प्लुरल के लिए, फेमिनिन जो होता है वो फीमेल के लिए, न्यूट्रल जो होता है वो किड्स के लिए, एंड प्लुरल इज प्लुरल. प्लुरल हम मस्कुलिन के लिए बना सकते हैं, न्यूट्रल भी फेमिनिन के लिए. जो भी एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन, इट विल बी फॉल इन प्लुरल. सो we have 3 articles: bestimmt article, unbestimmt article and negation. Bestimmt, unbestimmt and negation. So masculine article में हमारा जो bestimmt article रहेगा वो रहेगा there. Neutral में रहेगा das, feminine में die and plural में भी die. So there, das, die. Repeat after me: there, das, die. And in unbestimmt, masculine will be ein, neutral is ein, feminine eine, and plural is not available there. आईना होगा बट आईना नहीं होगा क्योंकि नॉन लॉजिकल है. ए बुक्स हम नहीं रेफर कर सकते. नेगेशन, मस्कुलिन काइन, न्यूट्रल काइन, फेमिनिन काइना, प्लुरल काइना. सो रिपीट आफ्टर मी द होल टेबल: देयर, दास, दी, देयर, दास, दी, ein, eine, ein, eine, kein, keine, kein, keine. So basically we can understand by it like we have a noun Vater, and as bedeutet father, which means father. So हम रेफर कर सकते हैं good father, no father, a father, the father, ठीक है. बट वहीं पे अगर हमें रेफर करना हो ऐसे, ठीक है, हम एक आर्टिकल से रेफर कर रहे हैं, लाइक ए कार, ए मैन, ए वुमन, ए बुक्स. तो ए बुक्स तो हो नहीं सकता, नॉन लॉजिकल है, ठीक है. तो ए वुमन, ए कार, ए मैन, तो हम वहाँ पे रेफर करेंगे सिर्फ आइन कार, आइन ऑटो. तो हम वहाँ पे रेफर करेंगे आइन ऑटो, आइन मान, आइन फ्राउ. एंड प्लुरल में बीसर के लिए आइन रेफर नहीं करता, बट अगर सिंगुलर के लिए ले हम बुक के लिए तो होता है बुक, तो आइन बुक, ठीक है. अगर वहीं पे बात करें द
car, the man, the woman, the books. तो वहाँ पे ये नहीं है कि जैसे हमने इंग्लिश में तो हम बोल दिया द कार, द वुमन, द मैन, द बुक्स, बट जर्मन में हमें डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि मैन जो होता है वो मस्कुलिन होता है, तो वहाँ पे आएगा देयर मान. ओके. एंड कार जो है वो न्यूट्रल होती है, तो वहाँ पे आएगा दास आउटो. वुमन जो होती है फेमिनिन होती है, तो इसके लिए आएगा दी फ्राउ. एंड बुक्स जो है वो प्लुरल में है, तो वहाँ पे आएगा दी ब्यूसर. वहीं पे नो कार के लिए काइन आउटो, काइन मान, काइन फ्राउ, काइन ब्यूसर. So you can understand easily by it, and we have some exercise also for you. And here are some tricks, because अभी आप सोचेंगे कि भाई हर एक चीज़ के लिए अगर हम हर एक नाउन के हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि मस्कुलिन है, न्यूट्रल है, फेमिनिन है, प्लुरल है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है. एंड स्टार्टिंग लेवल्स में हमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है. टिल A2 लेवल तक हमें काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है कि हर एक आर्टिकल हमें याद रखना पड़ेगा, हर एक नाउन के अकॉर्डिंग कौन मस्कुलिन है, कौन न्यूट्रल है, कौन फेमिनिन है, कौन प्लुरल है. तो बेसिकली इनके लिए प्रॉपर रूल्स तो नहीं है, but we have some tips and tricks for that, so we will explore it also. So for masculine refers to a male persons, like their father, their brother, their lehrer, the father, the brother, and the teacher. You can understand by it also, because this is the sense of humor, we can understand it easily. And there is some tricks also, like days, months, seasons. जब भी हम days, months और seasons के बारे में बात करेंगे, तब उनका जो आर्टिकल है वो मस्कुलिन ही रहेगा, मतलब देयर ही रहेगा, ठीक है. जैसे देयर मोन्टाग मतलब द मंडे, देयर यानुआर द जनवरी, देयर जोमर द समर. जो वीकडेज हैं, मंथ्स हैं, सीजन्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट जो हमारी क्लास आने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लोर करेंगे इनको अच्छे तरीके से. अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओके. एंड कुछ ट्रिक्स ये भी हैं कि जो भी नाउन्स हैं उनकी एंडिंग्स अगर en हो, er हो, ig हो और ling हो इन जर्मन, ठीक है, तो उनके जो आर्टिकल है वो हम सोच सकते हैं, हम ट्रिक लगा सकते हैं, हम हैक लगा सकते हैं कि उनका जो आर्टिकल है वो मस्कुलिन रहेगा. इनके लिए कुछ और टिप्स भी हैं, कुछ और एंडिंग्स भी हैं, वो सभी हम अभी नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है. जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, हम उनमें पूरी एक साथ में बता देते हैं, फिर उसमें भी बाद में बताते हैं. तो ये टॉपिक हम एक प्रॉपर एक अलग इसका क्लास बनाएंगे, एक अलग से पूरा लेसन बनाएंगे, तो उसमें हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो नोइटाल के बारे में बात करते हैं. तो नोइटाल जो है वो रिफर्स करता है स्मॉल चिल्ड्रन और यंग एनिमल्स, लाइक दास बेबी, दास मेडिसन. दास मेडिसन जो होता है वो गर्ल के लिए यूज में लेते हैं, विच एज इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है. जो 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनको हम दास मेडिसन कहते हैं, ठीक है. मोर देन 18 दी फ्राउ, ओके, वो आएंगी फेमिनियन में. एंड नाउन्स एंडिंग्स इन CHEN, LEIN, MENT एंड अभी के लिए आपके लिए 3-3, 4-4 एंडिंग्स ही काफ़ी हैं. सबसे पहले आप इनको याद कीजिए, फिर कुछ और एंडिंग्स भी हैं वो हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं. फेमिनिन के लिए आएगा रिफर्स टू फीमेल पर्सन्स, लाइक दी मूटर, दी लेहरिन. दी मूटर इज द मदर, दी लेहरिन इज द टीचर, दी लेहरिन, एंड देयर लेहरर इज मस्कुलिन, द टीचर. Nouns endings in E, HEIT, KEIT, UNG and SAFT, SCHAFT. These are the endings. By that you can get an idea that the article will be feminine. And for plural, all plural nouns take the article, no matter the gender is masculine, neutral, feminine. आप इजिली हैक लगा सकते हैं कि जो भी अगर मस्कुलिन हो, न्यूट्रल हो, फेमिनिन हो, अगर वो सिंगुलर है तो हमें देखना पड़ेगा देयर, दास, दी. बट अगर प्लुरल है तो बेसिकली सभी के लिए दी ही आएगा. आर्टिकल्स की हमें अब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है. यहाँ पे कुछ नाउन्स हमने लिखे हुए हैं according to the articles, and whenever you will learn any kind of noun, you have to learn with the article. Okay, don't say it individually, like man. Man is man, so you don't have to say only man, you have to say their man with article, so that you can learn it by heart and very easily. So their man abbreviated man. Repeat after me: their man. The Frau means woman. Das Kind means child. Das Kind. Then their Tisch
tis, that is separated table. The lamp, the lamp, lamp. Das book, das book, das book is book. The stool is chair. The tour, the tour. Door, das Auto, das Auto. Car, der Hund, der Hund. Dog, and the Katze. The Katze is cat, and das Haus, which means house. So here I have show you some the nouns with the articles. So like that you have to also learn it, and you can explore the whole articles, the nouns and the verbs on the dict.cc application, dict.cc एक एप्लीकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट. आप प्ले स्टोर पे iOS यूजर हो तो ऐप स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा. वहाँ पे से डाउनलोड करो और वहाँ पे आप इंग्लिश में जो भी वर्ड्स के बारे में जानना चाहते हो वो वहाँ पे पुट कीजिए. वहाँ पे आपको जर्मन में इनका मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से. फिर हम सेंटेंसेस के साथ में प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, कि इन सभी नाउन्स को और आर्टिकल्स को हम जब एज अ सेंटेंस यूज में लेते हैं तब हम कैसे यूज में लेंगे. हमारे पास में फर्स्ट सेंटेंस है दास ईस्ट देयर मान. दास ईस्ट देयर मान. रिपीट आफ्टर मी. दास ईस्ट देयर मान. दैट इज द मैन. क्योंकि देर दास दीदी ये क्या है, बेस्टिम्ड आर्टिकल है जिनका मतलब क्या होता है द. इंग्लिश में हम इनका यूज में क्या लेते हैं द. सो दास ईस्ट देयर मान मतलब दैट इज द मैन. Das ist die Frau. Every time I repeat, every time I say those sentences, you have to repeat after me by yourself. Okay, that's your responsibility. So das ist die Frau. Das ist die Frau. That is the woman. Das ist das Kind. Das ist das Kind. That is the child. Das ist der Tisch. Das ist die Lampe. Das ist das Buch. Das ist der Hund. Das ist die Katze. Das ist das Haus. इन सभी का मतलब जो होता है that is the table, that is the lamp, that is the book, that is the dog, that is the cat, that is the house. ये इनसे आप नॉर्मल सेंटेंसेस बना सकते हैं. सेंटेंसेस बनाने का पूरा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, वो सब भी हम नेक्स्ट लेसन में कवर अप करेंगे. नेक्स्ट लेसन में हम कवर अप करेंगे सेंटेंसेस के बारे में. ठीक है, और सम अनदर एक्टिविटी स्पीकिंग प्रैक्टिसेस. और हाँ, और फिर हम करेंगे जनवरी फरवरी मंथ्स एंड डेज. ठीक है, स्पीकिंग प्रैक्टिस आइडिया शो पिक्चर्स ऑफ इच. और सो हम जब भी मैम जब बात करते हैं, जैसे मतलब आप घर पे बैठे हो और आपने देखा कि वहाँ पे टेबल रखी है, तो आप उसको जर्मन में कैसे बोलोगे. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वास इस्ट दास, कैसे पूछ सकते हैं आपसे जर्मन में वास इस्ट दास. वास का मतलब होता है वॉट. सो वॉट इज दिस, वॉट इज दैट. सो यू हैव टू रिप्लाई लाइक दास इज दैट इज, दैट इज द टेबल. अगर आपके सामने लैंप रखा है तो दास इज दी लैंप है, दास इज दी लैंप है, दैट इज द लैंप. दास इज दास बुक, दैट इज द बुक. सो यू कैन प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ लाइक दैट, एंड यूजुअली इन योर हाउस एंड एवरीवेयर wherever you are going or exploring something, and you have to practice it all, okay, in daily life, so that you can use it, and you can practically whenever you will use practically, then you will be learn it by heart, and that will be very easy for you, and you will not face any difficulties regarding this. And the next topic is, now we have numbers, which we say in German Zahlen. Zahlen. Numbers, Zahlen. So basically I think you got something here, that ZAHLEN. इसको हम जालन क्यों नहीं कर रहे, सालन क्यों कर रहे हैं. ठीक है, ये वाली ट्रिक हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉर्मली अल्फ़ाबेट्स याद करने थे एंड प्रोनाउंसिएशन उनकी समझनी थी. तो वहाँ पे अगर ज़्यादा रूल्स कर देंगे तो आपके टिपिकल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो वो रूल्स हमने तब नहीं बताया. ये रूल्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो ZAHLEN को हम सालन क्यों करें, जालन क्यों नहीं कर रहे हैं. इसके पीछे एक लॉजिक है. ठीक है, कि whenever you see a noun whichever starting with S or Z, and after that you have vocal, means vowel, like A, E, I, O, U, then the sound of S will be converted into the sound of Z. The sound of S will be converted into the sound of Z, and the sound of Z will be converted into the sound of S. So that's the rule behind that logic. Okay, like we have some nouns like SOHN, John. ठीक, तो इसको हम सोन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम जॉन कहेंगे. जॉन, जॉन का मतलब होता है सन.
देयर जॉन, ठीक है। वहीं पे हमारे पास में SEIT, तो इसको हमें पढ़ना तो चाहिए साइट, बट इसको हम पढ़ेंगे जाइट, बिकॉज एस के बाद में और एस के बाद में यहाँ पे दोनों के बाद में एक में है ई और एक में है ओ, तो इनका एस का साउंड क्या रहेगा, जड़ के में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जॉन बन जाएगा और साइट बन जाएगा, जाइट मतलब सिंस। वहीं पे जड़ के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए हमारे पास एग्जांपल्स है, वी हैव एग्जांपल्स लाइक बाइस्पिल, ZEHN, so it is not Zen, it is Sen. Sen, the sound of S will be used here, Sen, which means 10, the number, and the next part is the site, not the jite, the site, which means time. So now you can got an idea from that, like अगर हम ZEIT को अगर हम जाइट पढ़ेंगे तो सामने वाला इंसान क्या समझेगा, सिंस समझेगा, ठीक है। और वहीं पे आप SEIT को और अगर आप साइट पढ़ोगे तो वो टाइम समझेंगे। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को कहने या फिर किसी भी लैंग्वेज को स्पीक करने में, ठीक है। और मोस्ट ऑफ टाइम जो हम जर्मन सीख रहे हैं या फिर आप किसी भी पर्पज से सीख रहे हो, तो वहाँ पे आप यूज कब लोगे, आप यूज में लोगे कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में अगर आप यूज में ले रहे हो और आप वहाँ पे बोलना चाह रहे हो टाइम के बारे में और आप वहाँ पे बोल रहे हो SEIT, ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन आप ऐसी कर रहे हो तो सामने वाला सिंस समझेगा ना कि टाइम समझेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है और हमें इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। और जब भी हम इन सबको करें तब थोड़ा क्लियरली और शार्प तरीके से बोले, लाउडली तरीके से, तब ये हमारा जो गला है या फिर जो हमारा बोलने की जो कैपेसिटी है वो इन सब वर्ड्स को ईजिली प्रोनाउंसिएट कर पाएगा। ओके, सो नाउ द टाइमिंग इज फॉर द नंबर्स। साल मतलब नंबर, एंड सालन द प्लुरल मतलब नंबर्स, ठीक है। सो जीरो को हम जर्मन में बोलते हैं नुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट एंड आफ्टर मी यू हैव टू रिपीट, ओके। सो जीरो को कहते हैं नुल, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. So now repeat after me. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, आठ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एस और यहाँ पे जीवन और जेक्स में एस के बाद में क्या है, ई है और आई है, मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास में वोकाल है, वोवल्स है। तो इनका साउंड हम एस सीबन ना लेके जीबन लेंगे, ओके। द साउंड ऑफ जेड विल बी यूज हियर, सो जेक्स एंड जीबन, देन नोएन एंड सेन, क्योंकि जेड के बाद में क्या है, ई है, वोकाल है, तो ये क्या बन जाएगा, साउंड ऑफ एस, सेन, ओके। आफ्टर दैट elf, repeat after me just, elf, zwölf, 13, 14, 3 मतलब 3, 10 मतलब 10, 15, 16, 17। जैक्सन और जिप्सन जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको आप अलग से समझ के रखेंगे, क्योंकि इन सब में क्या है कि जैक्सन एंड जिप्सन, क्योंकि इन सब में हम नॉर्मली अगर इनको बोलते हैं तो जैक्स होता है और जीबन होता है, बट जब हम 16 और 17 में इनको यूज में लेते हैं तब वहाँ पर सिर्फ जैक्स में एस हटा देते हैं और जीबन में ई एन हटा देते हैं, तो ये थोड़ा स्पेशल है, तो इसको आप अलग से नोट करके रखेंगे। देन नॉर्मली आक्सेन, नोएनसेन एंड स्वानसिस एंड स्वानसिक, ठीक है, स्वानसिस और स्वानसिक, ठीक है। आईजी को जो है कुछ लोग इस भी कहते हैं, एक भी कहते हैं, तो स्वानसिक जो कहते हैं वो भी ठीक है, स्वानसिस कहते हैं वो भी ठीक है। इसमें काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें, कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्वानसिक वाले सही हैं या फिर स्वानसिस वाले सही हैं, तो स्वानसिक भी सही है, स्वानसिस भी सही है, ठीक है। इनके आगे की फिर हम नंबर्स देखते हैं, लाइक 21। 21 को हम कैसे बोलते हैं, 21 में हम कहेंगे जो फर्स्ट डिजिट है, जैसे 1 है, ठीक है, तो इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, 1 को हम पहले बोलेंगे फिर 20 को बोलेंगे,
ठीक है, फिर हम टेंस को बोलेंगे, लाइक 1 and 20। ओके, कैसे बोलते हैं 1 and 20? तो जर्मन में कैसे बोलेंगे 1 को? आइन, आइन्स यूज में नहीं लेंगे, सिर्फ आइन यूज में लेंगे, एस रिमूव कर देंगे। आइन und स्वांसिस, आइन und स्वांसिस। उंड लगाना कंपलसरी है, ठीक है, उंड जो है ये बीच में जरूरी है, उंड का मतलब होता है एंड। सो आइन und स्वांसिस और आइन und स्वांसिक। 22 zwei und स्वांसिस, वेरी गुड, zwei und स्वांसिस। देन 35 सो zwei und स्वांसिस। 35 को बोलेंगे 35, ठीक है। 47 को बोलेंगे जीवन und Viersis। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि 20 को स्वांसिक कहते हैं। 30 जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसमें एसेट यूज में लेते हैं, लाइक जड़, जड़ की जगह पे आज यूज लेते हैं एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे नंबर्स देख सकते हैं, फियरसिस, फियमसिस, जेक्सिस, जीपसिस, आक्सिस, नोवेंसिस, 100 के लिए, 1000 के लिए बोलते हैं आइन टाउजेंड, एंड 10,000 के लिए बोलेंगे 100,000, फिर 100,000 के लिए बोलेंगे 100,000। वहाँ पे लाख वाला सिस्टम नहीं होता, ठीक है, तो लाख वाले से आप ट्राई मत करना। देन 1 मिलियन, आइने मिलियन। फिर इसके हम करते हैं प्रैक्टिस के हम सिंपल स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं कि हम नॉर्मली इनको जो नंबर्स को उनको कहाँ पे यूज में लेते हैं, ठीक है। लाइक वेन एवर आई हैव टू से दैट हाउ ईयर्स आई एम ओल्ड, देन आई हैव टू से लाइक इस बिन 15 Jahre alt, ठीक है। फिर इस बिन 25 Jahre alt, इस बिन 22 Jahre alt, ठीक है। इस बिन 10 Jahre alt। तो जो भी जितने भी नंबर्स हैं आप बता सकते हो। इस बिन और 11 alt का मतलब होता है 11 मतलब ईयर्स, alt मतलब ओल्ड। सो आई एम 15 years old, I am 10 years old, ठीक है। Like es kostet 10 Euro, it cost 10 Euro. Ich habe 2 Bücher, I have 2 books. Ich wohne in Haus Nummer 8, I live in Haus Number 8. Ich habe 3 Geschwister, I have 3 cousins. Meine Telefonnummer ist, आप अपना टेलीफोन नंबर बता सकते हैं, meine Telefonnummer ist 9358771, ओके। एंड अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस बिन 11 alt, आप यहाँ पे अपनी डिजिट रख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके जितने भी नंबर्स हैं। लाइक इस हाब कितने फ्रेंड्स आपके, एस कॉस्टेड Euro, कितने के Euro का आपका एक्सपेंस पड़ता है, इट कॉस्ट 10 Euro, 15 Euro। इस वोना इन हाउस नंबर, माइन टेलीफोन नंबर इस्ट, फिर टेस्ट। सो बेसिकली वी हैव कवर्ड टुडे आर्टिकल्स एंड द नंबर्स। सो we have covered articles and the numbers. So if you have any question or doubt regarding these topics, you can comment and I will give the response. And if you want to join our paid course, then you can directly contact us, okay. We have the link in description of our Instagram page and the WhatsApp connection, okay. So danke schön bitte, ciao, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।